नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के कोचिंग सेंटर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि के कोचिंग सेंटर ने मैथ्स के अलावा इंग्लिश की पढ़ाई भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करवा दिया है। और इसके लिए मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर प्रिंस। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। और मैं 3-4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मुझे मौका मिला इस चैनल पे आके पढ़ाने के लिए। और उसका सारा का सारा श्रेय जाता है वन एंड ओनली आपके बेस्ट सबसे फेवरेट मैथ्स टीचर के पाठक सर का। तो उनको यहाँ पे बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे मैथ्स टीचर हैं। मैथ्स के अलावा उनकी साइंस और फिजिक्स भी बहुत अच्छा है। एंड सर हैज़ बीन टीचिंग हियर इन दिल्ली since 2014, and so far he has taught more than 1000 plus students, and his students are very successful in their board exams. So please welcome one and only the honor, the maths teacher on this YouTube platform, KK Coaching Center, KK Pathak sir here. And I should like him to say something. और जैसे कि आप जानते हैं बहुत दिनों से काफी अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि कुछ बताएं। के पाठक सर। ओके, थैंक यू प्रिंस सर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं मैथ और साइंस इस के कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं और 2014 से मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूं। अभी इस के कोचिंग सेंटर पर मैथ और साइंस की क्लास चल रही थी, बट मैंने सोचा कि मैथ और साइंस को छोड़कर इंग्लिश की भी क्लासेज स्टार्ट किया जाए। बट कोई अच्छा टीचर मिल नहीं रहा था मुझे, जिससे मैं बोलूँ कि सर आप आइए और आके यहाँ पे पढ़ाइए। बट प्रिंस सर मिले हमसे, ये 4 से 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात आप लोगों के साथ ये एडवांटेज है कि ये ग्रामर और स्पीकिंग दोनों कराते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जब आप लोग पढ़िएगा इनसे तब आपको लगेगा कि हम इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग खुद इनकी तारीफ कीजिएगा। तो इनसे आप लोग क्लास लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही एनर्जी आपको फील होगी। एंड आज की क्लास सर स्टार्ट करेंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए बस। ओके, थैंक यू। Thank you sir for this appreciation. Thank you very much. So guys, first of all I should like to thank KK Pathak sir for giving me this opportunity to teach you all English online. And I think this dream of teaching online would not have become true without his support, without the infrastructure which he has created over here. So once again I should like to thank him from the bottom of my heart for the appreciation, exaggeration. Thank you so much sir. And now students, let's have a look over here. So today I will teach you about the basic things in introduction. I'm not gonna teach you about the letter, about the words or sentences, because you guys have grown up and now you need to polish your English. So I will start my first class from introduction. So introduction. Introduction means when you convey about yourself to someone else. That is called introduction. So introduction should be very simple. There should not be exaggeration in your introduction. Simple words you can use while introducing yourself, about your family, about your educational background. So very simply you have to introduce yourself. So there are some certain ways through which you can introduce yourself. So what matters a lot as a person for you? Your education, your family background, your hobbies, your aim, your locality, or your name. Of course, your name. So what comes first when you will introduce yourself? Before someone, before HR or before interviewee, you will have to mention your name first of all. So first your name. What will come first? Name. So there are some ways to introduce yourself. Your name, like my name is Prince, my name is KK Pathak, or I am KK Pathak, I am Prince, myself Prince.
it is blunder. Guys, never start with myself, because it is a reflexive pronoun and you can't start like this. You will be rejected in interview if you start introducing yourself like myself, Prince, I am graduate. No, this is not the intellectual way of introducing yourself or the professional way of introducing yourself. So have a look. You have to introduce yourself like my name is Prince or I am Sonu. So which would be the best? I am Sonu or my name is Sonu. So I reflects ego, and the company wants a humble person as a employee. So you need to show your humbleness by using the correct sentence. I am not saying that I am Sonu is not correct, but I want to say you that my name is should be the best. So the first sentence would be your name, like my name is Sonu or whatever, bala bala. Then what comes next? Then your intro, then your qualification, because you are what your knowledge is. You will be recognized, you will be honored, not because of your name. Suppose your name is Gyandev. There is a person in my mohalla, his name is Gyandev Singh, and you want to know what he does? He is non-matric. He didn't even become matriculate. He didn't even graduate his high school, and his name is Gyandev Singh. Amazing. So you will get name and fame in your life because of your knowledge, your qualification. That really matters. So after name you have to mention your qualification. So suppose you are graduate with physics honors, then you can say I am graduate with physics honors, or I have done my graduation with physics honors, or I am science graduate. This is how you can say qualification. I am graduate from Science College Patna. I have done my honors in chemistry from Science College Patna. So this is how you can move in your introduction. इंट्रोडक्शन में ऐसे आप आगे बढ़ेंगे. तो देन आपको क्वालिफिकेशन बताना है. जैसे आप बता सकते हो आई एम ग्रेजुएट with chemistry honors. I am graduate with chemistry honors. Third, or both, there are so many ways you can tell about your qualification to HR or to someone who is asking about your qualification. Like as far as my educational qualification is concerned, I have done my masters in physics honors. तो ये जो आप लगाते हो as far as, so far as, if you talk about fillers, तो ये आपकी इंग्लिश की ब्यूटी को बढ़ा देता है. तो आप फिलर्स भी यूज कर सकते हो. थर्ड इज योर रेसिडेंस, वेयर यू कम फ्रॉम. दिस थिंग्स ऑल्सो मैटर्स. आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बिकॉज योर फैमिली बैकग्राउंड और द प्लेस वेयर यू लिव रियली मैटर्स. जैसे कि आप दिल्ली में आते हो और आप कहते हो कि मैंने जेपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो अच्छी सारी कंपनियां उसको, आपके बायोडाटा को वहीं पे डस्टबिन में डाल देती है. और जैसे ही आप कहते हो कि आई एम ग्रेजुएट विथ फ्रॉम DAV PG कॉलेज DU साउथ कैंपस, तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि कॉलेज की क्वालिटीज भी बहुत मायने रखती है, राइट. तो आपका रेसिडेंस भी बहुत मायने रखता है. आप जैसे ही कहते हो कि
आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा, और आई बिलोंग टू गुड़गांवा। तो लोग समझते हैं कि हाँ थोड़ा सा मल्टीनेशनल अच्छी सिटी है, बहुत सारे बीपीओज हैं वहाँ पे। या फिर आप कहते हो कि आई एम फ्रॉम एलए, लॉस एंजल्स, तो लोग आपको उस तरह की वैल्यू देते हैं। अच्छा आप हॉलीवुड शहर से हैं, या फिर आप पुणे से हैं, और आप कहते हो कि मैं पटना से हूँ, बिहार से हूँ, तो आपको उस टाइप के लोग वेट देते हैं, वेयर यू कम फ्रॉम। जैसे ही हरियाणा नाम आता है तो हम सोचते हैं कि अरे हरियाणा तगड़ा मोटा लंबा, स्पोर्ट्स क्रेजी स्टेट्स, तो ये एक इमेज आता है वो निकल के, राइट। तो आपका रेसिडेंस भी बहुत मायने रखता है। तो आप इसके भी बोल सकते हो कि आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम पटना, और आई बिलोंग टू पटना, और आई सबसे कॉमन है, आई कम फ्रॉम पटना, ये भी आप बोल सकते हो। और अगर आप वहाँ पटना में आप टेम्पररली रह रहे हैं तो आप आई एम लिविंग एट पटना बोल सकते हो, और आपका अपना घर है तो आई लिव एट पटना बोल सकते हो। दिल्ली के सीन में भी वही चीज़ आएगा। एक्चुअली दिल्ली इज नॉट आवर होम टाउन, इट्स आवर कैपिटल सिटी, वी हैव कम हियर फ्रॉम बिहार। तो आप कह सकते हो कि आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन उत्तम नगर ईस्ट दिल्ली, ठीक है, राइट। देन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा इस पे, ठीक है। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, यहां पे आपको अपना एम बताना होगा कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, आपका महत्वाकांक्षा क्या है लाइफ में। बच्चे तो बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, हाईली एम्बिशियस होते हैं। एक बच्चा से पूछो 9-10 साल का, बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी साइंटिस्ट, आई वॉन्ट टू बी क्रिकेटर। When I was also mere a child, I had a dream of becoming cricketer. I used to tell, I want to be cricketer. I want to play for India. So when we were a child, our imaginations had no limit. We thought of changing the world. It happens. It has happened with me, and it generally happens with most of the children. ठीक है, मानते हैं आपका एम है इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, तो फिर आपका हॉबीज क्या होना चाहिए? क्या आपका एम है इंजीनियर बनना और आपका हॉबीज है लिटरेचर पढ़ना? सूट कर रहा है बताइए भाई साहब? आपका हॉबी भी कुछ वैसे ही होना चाहिए जो आपके एम से मैच करे, अनमैचेबल हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में जाके बोलते हो कि आई वॉन्ट टू बी अ बेस्ट एम्प्लॉय इन योर कंपनी, एंड आई लाइक वॉचिंग मूवीज एंड स्लीपिंग, ईटिंग, मच ईटिंग, then you will be rejected, man. Your hobby should be similar to your aim. So suppose your aim is to be an engineer, then what should be your hobbies? Your hobby should be watching science fiction movies, playing with mechanical tools, playing mobile games like this, playing with machines. This should be your aim. If your hobby, if your aim is to be an engineer. I have a nephew, Prithvi, and he says that I want to be a scientist. Guys, एक चीज आप कभी मत करना, कभी किसी को डिस्करेज मत करना। छोटा बच्चा इमेजिनेशन हाई होता है, बोलता है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। बोला बेटा तू बनेगा, तेरे को एस्ट्रॉइड के बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पे देखो पढ़ो, तुम बनेगा। डिस्करेज नहीं करना है। बच्चों थोड़े ईगो पे ज्यादा ले लेते हैं, तो मैंने भी उसको बोला कि हाँ तू बनेगा, साइंस एस्ट्रॉइड्स इसके बारे में पढ़ो, यूट्यूब पे देखो। तो डिस्करेज नहीं करने का, बच्चे का एम थोड़ा सा होता है। तो आपका अगर मैंने बोला कि देख बेटा, इफ यू वांट टू बी ए साइंटिस्ट, देन योर हॉबी शुड बी एक्सपेरिमेंटिंग विथ केमिकल्स एंड वॉचिंग साइंस फिक्शन मूवीज। बोला कि यस, एंड आफ्टर देन ही स्टार्टेड mentioning in his introduction that I want to be a scientist and my hobbies are watching science fiction movies, cycling, and experimenting with chemicals. मैंने बोला ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। सो गाइज आपके लिए भी ये है, आप भी अपना जब एम और हॉबी तो उसको मैच करना। जैसे
आई वॉन्ट टू एम, आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर। अगर आपका एम है क्रिकेटर बनना, तो हॉबी कैसे हो सकता है? NFL देखना। बाप रे बाप, आप NFL देखते हैं, आप NBA का मैच देखते हैं, जो इंडिया में उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जिसका कोई लीग नहीं होता है यहाँ। हालांकि अमेरिका में NFL और NBA का काफ़ी क्रेज है, WWE का काफ़ी क्रेज है। लेकिन भाई साहब, आप अपना क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट देखिए ना, क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें पढ़िए आप। तो आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी क्रिकेटर एंड आई लव वॉचिंग WWE, जॉन सेना, ब्रॉक लेसनर, लाइक दिस। सो आई वॉन्ट टू बी ए क्रिकेटर। तो आपकी हॉबी क्या होना चाहिए? हॉबीज, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। और कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, राइट। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। आई होप, पहला वीडियो है इस चैनल पे, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा, डू सब्सक्राइब दिस चैनल and share this channel among your family members, friends. In next video, I will talk further about family introduction and something related to spoken English in next video. So all the best. Once again, thank you very much everyone. Thank you very much KK Coaching Center, Pathak sir, for this opportunity. And one thing more guys, there is another channel on YouTube जो मैंने खेलों से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए क्रिएट किया है, और उसका नाम है खेलोगे। खेलोगे तो खिलोगे, खिलोगे। काइंडली इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको सिर्फ खेल से रिलेटेड, आप अगर खेल इंथुजियास्ट हैं, आपको सच में खेलों में इंटरेस्ट है, तो ये चैनल आपके लिए बना है। लिख के देखिए इसको यूट्यूब पे, ये सबसे पहले आपको आएगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप SSC, बैंक, PO और UPSC, BPSC लेवल की तैयारियां करते हैं, तो स्पोर्ट्स का पोर्शन में इस वीडियो में आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपका काइंडली कवर हो जाएगा। सो चलिए, और वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।